Good morning, students. Now today lecture number is 16 and today's date is 8th May 2020. Now we have seen 15 terms till now. Now today we'll see 16 number, that is receipt. Now generally what is receipt? अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले कि रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट यानी क्या, तो हम क्या समझते हैं कि जैसे कि आप लोग, तो आपने अगर फीस पे की है स्कूल में तो आपको उसके सामने क्या मिलती है, रिसिप्ट, आप ऐसा बोलते हो। लेकिन अकाउंटेंसी में रिसिप्ट का मीनिंग अलग है। ओके, सो हियर व्हाट इज रिसिप्ट? सो व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज रिसिप्ट? व्हेन मनी इज रिसीव्ड ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं और उससे हमें जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। क्लियर? अगर हम बिजनेस करते हैं और हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमको अगर पैसा मिलता है तो दैट इज रिसिप्ट फॉर अस। ओके, नाउ दिस रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर। अब नेचर यानी सब रिसिप्ट को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो हमारे बिजनेस में रिसिप्ट होती है ना, उसको हम क्लासिफाई दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे रिसिप्ट्स रेगुलर रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर and not regular received during the year, यानी receipt which regularly received during the year, and second one is not regularly received during the year, यानी कुछ रिसिप्ट ऐसी होती है जो हमें साल में बार बार मिलती है, हम उसको रेगुलर बेस पे रिसिप्ट करते हैं, यानी रेगुलर बेस पे हमको मिलती है। और कुछ रिसिप्ट ऐसी होती है जो रेगुलर नहीं होती है, दे आर नॉट रेगुलर, यानी कि वो हमें रेगुलर बेस पे मिलती नहीं, यानी कभी कभी मिलती है या 2-3 साल में एक बार मिलती है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, दैट इज रेगुलर रिसिप्ट एंड नॉट रेगुलर रिसिप्ट। सो ऑन द बेस ऑफ दिस रिसिप्ट इज क्लासिफाइड इन टू वेज, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो रिसिप्ट इज क्लासिफाइड इन टू वेज, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल receipt. Now what is revenue receipt and what is capital receipt? Okay, so revenue receipt means what? The receipt which is received by business regular basis, yani from the day to day activities of the business. For example, sale of goods, commission received, interest received. Okay, this kind of receipt is regular in business, so we receive more than one time during the year. But what is capital receipt? The receipt which is not regular, the receipt which is not received by business regular basis, they are known as what? Capital receipt. For example, sale of assets, यानी कि हम बिजनेस में assets हर रोज सेल नहीं करते या हर साल सेल नहीं करते, है ना। So they are what? Capital receipt. Okay, so this is meaning of what? Receipt. So what is receipt? When money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt. यानी हमको जब भी पैसा मिलता है और वो पैसा बिजनेस के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, and that receipt must be from business transaction, not any other personal. Okay, only then it is receipt for the business. Okay, so this is the meaning of receipt and this is the classification of receipt. Now we'll see next term, that is revenue receipt and capital receipt. Okay, now next term, that is capital receipt, that is 70 number, and 18 number, that is revenue receipt. Now we have seen meaning of receipt. Okay, what is receipt? The receipt means what? The money received from business transaction, है ना, consequence of business transaction, that is what? Receipt. And receipt is classified in two ways, capital receipt and revenue receipt. Now first we see capital receipt. So what is capital receipt? This receipt is not received regularly. So capital receipt means what? The receipt which is not received regularly, that means it is a capital receipt. It is also known as capital income. It is also known as capital income. Okay, now this receipt is procured from the sale of assets. हमको ये receipt कहाँ से मिलेगी? So generally this receipt is procured. Procure means हमको कहाँ से मिलेगी? So from the sale of assets. अगर हम अपनी बिजनेस में assets सेल करते हैं तो उस रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम assets हर साल सेल करते नहीं हैं, है ना, that's why. So this receipt is procured from the sale of assets. And second, this receipt is obtained by issuing debentures. Now debenture means what? So debenture is one kind of debt, है ना, हमारा क्या है? डेब्ट है।
So when company issue debentures and receive the money, that is what capital receipt, because company will not issue debentures regular basis. company हर साल डिबेंचर इश्यू करती नहीं है. कंपनी डिबेंचर कब इश्यू करती है? जब उसको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, when company need excess fund, है ना. और कंपनी अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार डिबेंचर इश्यू करती नहीं है. Okay, so when money is issued by issuing debenture, it is also capital receipt. So these are the two example of capital receipt, and this is the meaning of capital receipt. Okay, and this kind of receipt is not frequently. जो capital receipt है ना, वो frequently होती नहीं है ना, बार बार होती नहीं है. Okay, so that's why it is what capital receipt. Now second, that is revenue receipt. अब revenue receipt क्या है? So the flow of this receipt would remain constant. ये receipt कैसी होती है? Constant होती है, यानी हर साल होती रहती है. And this receipt is arise from the business activity, day to day business activities. हम जो अपने बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, उससे हमें जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट. ओके, नाउ फ्रॉम रिसीप्ट प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर कैन बी एसर्टेन. हम इस रिसीप्ट से, फ्रॉम रेवेन्यू रिसीप्ट वी कैन एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर. हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, वो कहां से फाइंड करते हैं? फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीप्ट. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि from which receipt we can ascertain our profit and loss. So revenue. Okay, revenue receipt. Then this kind of receipt arise frequently. एक ऐसी रिसीप्ट है जो बार बार होती है. This kind of receipt arise frequently, यानी बार बार होती है. जैसे सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स हम बिजनेस में एक बार सेल नहीं करते, हर रोज करते हैं, है ना. So this kind of receipts arise frequently, and revenue receipt is also known as revenue income. So revenue receipt को हम दूसरा क्या बोलते हैं? revenue income. And capital receipt को दूसरा क्या बोलते हैं हम? capital income. Capital receipt is not arise frequently, and revenue receipt is arise frequently. And capital receipt is procured or obtained from sale of assets and issue of debenture, and revenue receipt is arise from sale of goods, dividend receive, commission receive, interest receive. All these are what? Regular income, because we receive this kind of income more than one time during the year. हम साल में कई बार ऐसा इनकम रिसीव करते हैं. Okay, so this is the meaning of capital receipt and revenue receipt. Okay, now we have seen meaning of receipt and types of receipt, that is capital receipt and revenue receipt. Now same way there is a payments. Now what we will see, what do you mean by payments and types of payments. So what is payments? So money paid due to consequence of business transaction is known as payments. यानी हम अपने बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जब भी कोई पेमेंट करते हैं, पेमेंट यानी पैसों का पेमेंट, तो वो क्या कहलाता है बिजनेस में? पेमेंट. एंड जब भी हम बिजनेस में मनी पे करते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो इट इज व्हाट? पेमेंट्स फॉर द बिजनेस. वो पेमेंट्स किसी के लिए भी हो, पैसा बिजनेस में से जाना चाहिए. सो व्हेन मनी गोज फ्रॉम बिजनेस due to business transaction, it is what? Payment for the business. Now these payments are classified on the basis of their nature. हम इस पेमेंट्स को भी रिसिप्ट की तरह क्लासिफाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट that is payment regularly paid during the year, and second payment not regularly paid. First one is regularly paid and second one is not regularly paid. ना पेमेंट रेगुलरली पेड इन द ईयर मींस व्हाट? यानी कि ऐसे पेमेंट जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं हम रेगुलर पेमेंट्स, है ना. और यू कैन से रेवेन्यू एक्सपेंस. एंड पेमेंट नॉट रेगुलरली पेड इन द ईयर मींस ऐसे पेमेंट जो हम बिजनेस में रेगुलर बेस पे पे नहीं करते, कभी कभी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ रेगुलर पेमेंट, सो अगर हम अपनी दुकान का रेंट देते हैं तो वो क्या है हमारे लिए? पेमेंट है, वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. लेकिन दुकान का रेंट, हमारी शॉप का रेंट हम हर महीने देते हैं, यानी साल में कितनी बार देते हैं? 12 टाइम. सो ये क्या हो गया? रेगुलर एक्सपेंस, यानी हर महीने हमें रेंट देना है. तो जब कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको बार बार देना है, हर महीने देना है, या साल में एक से ज्यादा बार देना है, तो क्या हो जाएगा? रेगुलर पेड, यानी रेगुलर पेमेंट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस. एंड ऐसा कोई एक्सपेंस जो हम कभी कभी करते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ असेट्स.
हम बिजनेस में असेट्स बार बार परचेस नहीं करते, यानी एक ही असेट्स बार बार परचेस करते नहीं। मान लो हमने इस साल एक मशीनरी परचेस की है, तो वही सेम काइंड ऑफ मशीनरी हम अगले साल परचेस नहीं करेंगे, या साल में अगले महीने भी परचेस नहीं करेंगे। ये मशीनरी हम कम से कम 5, 6, 10 साल के बाद ही परचेस करेंगे। तो ये कैसा एक्सपेंस हो गया? मोर देन 1 ईयर, यानी इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है। सो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉट रेगुलरली पेमेंट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। So there are two types of payments, or you can say expense. They are capital expenditure and revenue expenditure, or you can say capital expense or revenue expense. Okay, so this is the meaning of what? Payments. Now like receipt, receipt यानी क्या? बिजनेस के ट्रांजेक्शन से हमारे बिजनेस में पैसा आता हो, है ना, पैसा आना चाहिए किसी भी रीजन से, तो क्या कहलाता है? रिसिप्ट। सेम वे में बिजनेस में पैसा जाता है बिकॉज ऑफ any reason, that is what? Payments. Okay, so this is meaning of receipt and this classification of expense, or you can say payments. This is capital and revenue. Now we'll discuss meaning of capital expenditure and revenue expenditure. Okay, now next, that is capital expenditure and revenue expenditure, that is 20 number and 21. Now what is capital expenditure? So this payment is not रेगुलर इन नेचर। ये कैसा पेमेंट है? जो रेगुलर नहीं है, यानी इसको हम बार बार करते नहीं है। नाउ जनरली व्हेन फिक्स असेट्स आर परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर अराइज, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है बिजनेस में? तो जनरली जब हम फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तब। व्हाट इज फिक्स असेट्स? ऐसी असेट्स जो हमारे बिजनेस में मोर देन 1 ईयर तक रहती है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल में दिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। नाउ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर यानी क्या? जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसका पैसा हमें कुछ साल के बाद वापस करना होता है। तो जब हम वापस करते हैं उसका पैसा डिबेंचर्स होल्डर को, तो ये क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर को पैसा हर साल वापस करते नहीं है ना। So these are the two example of capital expenditure. Now revenue expenditure. So what is revenue expenditure? The flow of this payment would remain constant. ये कैसा एक्सपेंस है? कांस्टेंट है, बार बार होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है तो फिर नहीं होगा, इस महीने हुआ तो अगले महीने नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये हर महीने होगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ फ्रॉम दिस पेमेंट प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइंड, इसके बिहाफ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके एग्जांपल है सैलरी, वेजेस, टेलीफोन, है ना, इंटरेस्ट, कमीशन। सो दीज आर व्हाट? रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को हर महीने देना है। जैसे कि सैलरी, तो सैलरी हमें हमारे एम्प्लॉयज को हर महीने देना है, ऐसा नहीं है कि इस महीने दिया फिर कभी देना नहीं है। सो सैलरी, वेजेस, टेलीफोन बिल, ये कैसे एक्सपेंसेस है? जो बिजनेस में बार बार होते हैं, हर महीने होते हैं, और इसको हर महीने इसको पे करना पड़ता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें बार बार पे करना है, हर महीने पे करना है, ऑल दोस एक्सपेंसेस आर व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यू कैन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और हियर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंस। ओके, सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? Those expense which are not regular in nature. And what is revenue expense? Those expense which are regular in nature. An example of capital expenditure means what? Purchase of fixed assets and repayment of debentures. An example of revenue expense means payment of salary, payment of wages, payment of telephone bill. Okay, so these are what? Example of revenue expenditure. Now, today we have seen receipt and payment and types of receipt and type of payment. Okay, so you have to note down all these notes in your notebook, and tomorrow we'll see another terms. Okay, so thank you and have a nice day.